yesterday we did something about radiation. Radiation was one of the modes of transmission of heat without heating the intervening medium. We are achieving thermal radiation from sun by the method of radiation. You know, sun is at a distance of 1 AU from Earth, 1 astronomical unit, 1.5 into 10 per 11 meter. Distance is between sun and Earth, it's mean distance. And we are receiving solar radiations from the sun on Earth. I told you two physical quantities, solar constant and solar luminosity. Solar constant was amount of thermal energy received by a perfectly black body on Earth when it is held perpendicular to the direction of sun rays per second current area. Sun से radiation आ रही है perfectly black body. I told you yesterday perfectly black body also. A perfectly black body is that which absorbs radiations of all wavelengths at every temperature. परफेक्टली भूखा बंदा वो होता है जिसको कच्चा मिल जाए, बासी मिल जाए, जब भी मिल जाए वो उसको पूरा खा जाए, उसको कहते हैं परफेक्टली भूखा है. तो सिमिलरली परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी विच अब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ. एंड इफ यू कीप ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन सन रेज, then how much heat energy is received by that perfectly black body per second per unit area. That is solar constant. And I told you the value of solar constant. Solar constant denoted by S was 2 calorie per centimeter square per minute. Or solar constant was 1388 watt per meter square. That means in 1 minute 1 centimeter square area of a perfectly black body held perpendicular to sun rays is receiving almost 2 calories of radiations. Radiation means energy which is emitted by a body because of its temperature. And yesterday I told you Prevost theory. Every body above 0 Kelvin emits thermal radiation. And you know third law of thermodynamics, 0 Kelvin temperature is not possible. That means everybody has temperature more than 0 Kelvin. And Prevost say everybody whose temperature is above 0 Kelvin is emitting thermal radiation. That means even ice, which is at 273 Kelvin temperature, is emitting thermal radiation. ये बात हजम नहीं होती कि ठंडी ठंडी आइस जो है वो भी गर्म गर्म रेडिएशन एमिट कर रही है. प्रेवोस्ट ने कहा 0 केल्विन के ऊपर जिसका भी टेम्परेचर होगा वो थर्मल एनर्जी एमिट करेगा. ओके, हमारे पास सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सन का है. सन का टेम्परेचर बहुत हाई है. सन रेडिएटिंग थर्मल एनर्जी इन ऑल द डायरेक्शन. बट अर्थ विच इज 1 AU डिस्टेंस अवे फ्रॉम सन इज रिसीविंग 2 calories per centimeter square area of a perfectly black body per minute. 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, जिसको हमने परपेंडिकुलर पकड़ रखा टू द सन रेज, वो इतने कैलोरी हीट एनर्जी एमिटेड बाय सन इज रिसीविंग. तो इसको हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं. ओके, देन आई टोल्ड यू सोलर luminosity. Solar luminosity means how much total energy is emitted by the sun in all the direction per second. Total thermal energy emitted by the sun in all the direction per second. Per second. इसका वैल्यू आपको बताया था 3.9 into 10 raised to the power 26 watt. Sun is a source of heat energy. Sun is a hot body, can be taken as a perfectly black body and is emitting thermal radiation in all that direction. So how much total energy is emitted by the sun in all the direction per second? Okay, that is solar luminosity.
and solar luminosity was related to solar constant by this relation. S is solar constant, Ls is solar luminosity, and R is the mean distance of the Earth from the Sun. The value of R here is 1 AU, 1 astronomical unit. Okay? And 1 AU is almost 1.496 into 10 raised to the power 11 meter. Okay? The solar luminosity and solar constant related to each other by this relation, and they have values. Now I told you yesterday, okay, on a surface, if some of the radiations are falling, radiation which are falling on any surface, they are of different wavelength. Hot body emits thermal radiation of all wavelength. जो भी हॉट बॉडी है, आपको बताया प्रिमोस ने कहा कि आइस भी थर्मल रेडिएशन एमिट कर रही है, जिसका भी टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फारेनहीट है, इसका भी अब 0 केल्विन से काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, तो हम लोग भी थर्मल रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। लेकिन आवर बॉडी इज एक्सपोज टू द रेडिएशन विच आर बीइंग एमिटेड बाय अदर बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल, वी आर इन फ्रंट ऑफ द सन and our body is receiving solar energy from the sun. Okay, so how much area of our human body is exposed to, and what is the nature of this human body? Is a good observer, or is a reflector, or is a transmitter? So I told you yesterday, if there is a surface and Q is the quantity of heat which is incident falling on this surface in a given time, what will happen? A part of this energy will be reflected back by the surface, and Q2 amount of heat energy will be absorbed by the surface in a given time, and Q3 will be the quantity of heat energy which will be transmitted by. Okay? If this body is opaque, it will not transmit. It may absorb, it may reflect. Then according to the law of conservation of energy, this is the total energy falling on the surface in a given time, and this is the amount of thermal energy which is reflected, and this is the amount of thermal energy which is absorbed by the surface in that time, and Q3 is the amount of energy transmitted in a given time. This is according to the law of conservation of energy. And if you divide both sides by Q, मैं थोड़ा सा इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ, कल आप लोग आए नहीं थे तो उनको प्रॉब्लम आएगी आगे प्रॉब्लम। तो हेरिडिटी है, रिवाइज कर रहा हूँ। Q by Q is 1, this is called R, this is called A, this is T. This R, what is this R? R is the reflecting power. It is the ratio of amount of thermal energy reflected by the given surface and the amount of total energy incident on the surface in a given time. कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई और उसमें कितनी रिफ्लेक्ट हो गई, इन दोनों की रेशियो को रिफ्लेक्टिंग पावर कहते हैं, रिफ्लेक्टेंस भी कहते हैं। सिमिलरली जो A है, A इज ए अब्जॉर्बेंस और ऑब्जर्विंग पावर। इट इज ए रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय द गिवन सरफेस इन ए गिवन टाइम एंड द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस इन दैट टाइम। This is observing power or absorptance. And then T is transmittance, means how much energy is transmitted out of the total which is incident. Okay? So R plus A plus D is equal to 1. Then I told you, if this surface is opaque, let us suppose the surface is opaque, that means the transmission will be 0. It will either reflect or absorb. It will not allow thermal radiation to pass through. Okay? So then this E will be 0, no transmittance. The left behind will be R plus A is equal to 1. If let us suppose R is 0.2, what will be the value of A? 0.8.
That means if surface such that it reflects 20%, reflects 20%, so it will absorb 80% out of total. So that means the surface which is a good absorber will be poor reflector. जो ऑब्जर्व ज़्यादा करेगा रिफ्लेक्ट कम करेगा. गुड ऑब्जर्वर इज ए पुअर रिफ्लेक्टर एंड वाइस वर्सा. अगर ये R इज इक्वल टू 0.8 होता तो A इज इक्वल टू 0.2 होता. तो R अगर 0.8 होता 80% रिफ्लेक्ट कर देता तो 20% ही ऑब्जर्व करता. ट्रांसमिशन तो हुई नहीं. ओके. तो अगर वो रिफ्लेक्टर अच्छा है तो ऑब्जर्वर पुअर है, अगर ऑब्जर्वर अच्छा है तो रिफ्लेक्टर पुअर है. तो कंक्लूजन क्या निकला कि गुड ऑब्जर्वर इज ए पुअर रिफ्लेक्टर एंड वाइस वर्सा. क्लियर? इतना आइडिया आप रखो. फिर आई टोल्ड यू परफेक्टली ब्लैक बॉडी, लैंप ब्लैक, काजल होता है लैंप ब्लैक, उसका कलर भी ब्लैक है और उसको कहते हैं भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है. परफेक्टली 100% तो नहीं है, आपको बताया था 99% लैंप ब्लैक एंड प्लेटिनम ब्लैक. These are the two examples of almost perfectly black body. लैंप ब्लैक, काजल आंखों में डालने वाला, और प्लेटिनम ब्लैक. 99% ये ऑब्जर्वर है. ओके. तो अच्छा, दूसरा ये जरूरी नहीं है कि जो बॉडी दिखने में ब्लैक है और वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो. इट इज नॉट नेसेसरी. द बॉडी विच इज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज ब्लैक इन कलर. ये जरूरी नहीं है. कल आपको बताया था फेरी ने एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाई थी. ऑलरेडी मैं रिवाइज कर देता हूँ. डबल वार्ड है, स्फेरिकल वेसल था, डबल वार्ड. तो उसमें एक स्मॉल ओपनिंग थी, ऐसे डबल वार्ड वेसल था. There was a small opening here, and inside the inner walls of this double walled sphere was coated with lamp black. इसको lamp black से कोट किया था. In front of this almost there was a projection. ये projection था P. Radiation इसमें enter करती थी, reflect होती थी, multiple reflection होता था और ultimately ये अंदर absorb हो जाती थी. लैंप ब्लैक से कोटिंग है. लैंप ब्लैक 99% ऑब्जर्वर है. तो जो रेडिएशन इस स्मॉल ओपनिंग से अंदर एंटर कर गई, दे विल सफर मल्टीपल रिफ्लेक्शन टिल दे आर टोटली ऑब्जर्व. ओके. तो ये जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाई फेरी ने बनाई, डबल वार्ड वेसल एरिया, अंदर इनर सरफेस लैंप ब्लैक से कोटिंग कर दी. इधर ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग, इधर प्रोजेक्शन है. ये रेडिएशन इसमें एंटर कर गई है और it will suffer multiple reflection and ultimately it will get absorbed. Okay. सर वो जो प्रोजेक्शन है उसको उससे नहीं कवर करते हैं? लैंप ब्लैक से? Yes, sir. हाँ करेंगे. ये भी क्वांटिटी होता है लैंप ब्लैक से, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो रेडिएशन अंदर एंटर कर गई है, तो रेडिएशन जो कोई भी बॉडी, मानो हम अबव 0 केल्विन टेम्परेचर की बॉडी है, हम रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, ऐसा प्रिवोस ने बोला. एवरीबॉडी अबाउट 0 केल्विन emits thermal radiation, and the radiation emitted by anybody because of temperature, उसको थर्मल रेडिएशन कहते हैं. एंड बॉडी emits radiation of different wavelength. जैसे ह्यूमन बॉडी है, वो जब किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ वैरायटी होती है खाने के लिए. वैरायटी ऑफ थिंग्स आर एक्सपोज टू यू एंड देन यू हैव ए पर्टिकुलर चॉइस फॉर ए पर्टिकुलर आइटम, और वो ज़्यादा आप क्वांटिटी में खाते हैं. हम कहते हैं ये इस चीज़ का गुड ऑब्जर्वर है, इसको ये चीज़ अच्छी लगी, इसकी पसंद की है. किसी की राजमा पसंद है, किसी की आइसक्रीम पसंद है, किसी का रसगुल्ला गुलाब जामुन पसंद है. तो वो फिर वो देखता है कि मेरे पसंद की चीज़ का है. पंजाब एरिया मक्की की रोटी सरसों का साग किसी को पसंद है, वो उसी पे अटैक करता है और कुछ नहीं खाना. ठीक है ना. कई लोग नूडल ढूंढते हैं, भाई हमने तो चाइनीज़ डिशेज खानी है तो या रशियन सलाद खाना, वो कहाँ मिलेगी, उस पर अटैक. सारी चीज़ें नहीं खाते. सिमिलरली जो बॉडी है, जो जिसका टेम्परेचर और थर्मल रेडिएशन एमिट कर रही है, इट इज एमिटिंग रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. और जब वो बॉडी कोल्ड होती है तो वो रेडिएशन ऑब्जर्व करती है.
ओके, तो वो ऑब्जॉर्व भी डिफरेंट वेवलेंथ को करेगी, लेकिन सभी वेवलेंथ बराबर अमाउंट में वो ऑब्जॉर्व नहीं करेगी। ओके, आप कई चीज़ें टच ही नहीं करते, आपकी पसंद की नहीं है, आप कहते आप इसके आपको ये टेस्टी नहीं लगती है। कई चीज़ों पे आप अटैक करके बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। तो बॉडी की पसंद है कि कौन सी वेवलेंथ उसने ज़्यादा एब्जॉर्व करनी है जब उसने ठंडा होना है, और जब उसकी गर्म करना है तो उसने वही रेडिएशन एमिट करनी है जो उसने एब्जॉर्व की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चोर है और साइकिल चोरी करता है, जब पकड़ा गया तो उसके घर से मोटरसाइकिल थोड़ी निकलेगी, उसने चुराए साइकिल है। ओके, तो जो राजमा खाता है कि अगर उल्टी आ गई तो राजमा ही निकलेंगे, चने बन के थोड़ी निकलेंगे। तो जो वेवलेंथ बॉडी ने ऑब्जर्व किया है जब वो ठंडी थी, ठीक है, अब वही वो अमिट करेगी जब उसको गर्म किया जाएगा। जैसे पुलिस वाले मारते हैं ना, तो पता तूने क्या क्या चोरी किया था। अब बॉडी की पिटाई कैसे होगी, इसकी थर्मल हीटिंग होगी, इसको गर्म किया जाएगा और बॉडी को कहा जाएगा हम तेरे को गर्म करें, जो जो वेवलेंथ तूने खाई है निकाला। तो बॉडी ऑब्जर्व व्हेन इट इज कोल्ड एंड इट एमिट्स व्हेन इट इज हॉटर। ओके, अब पता नहीं हमें जो रेडिएशन अंदर गई है कौन कौन सी वेवलेंथ के लिए। आपको कल बताया था जो थर्मल रेडिएशन है ये विजिबल नहीं है, इनकी वेवलेंथ विजिबल रीजन से हायर है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इन्फ्रारेड रेडिएशन इनको कहते हैं। ये विजिबल नहीं है। जो विजिबल लाइट है वीपीओ के नाम से जो VIPGY या OR होता है, रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम है आउट ऑफ विजिबल रीजन 7800 ऑट्स तक। तो ये जो इन्फ्रारेड रेडिएशन है, ये जो रेडिएशन है थर्मल रेडिएशन है जी, ये इनकी वेवलेंथ विजिबल रीजन से हायर है। जैसे लाइट होती है, ये भी एक रेडिएशन है। जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, लाइट के साथ पोलराइजेशन होती है, इंटरफेरेंस होती है, डिफ्रैक्शन होती है, अब्जॉर्प्शन भी होती है। तो सिमिलरली ये जो थर्मल रेडिएशन है ये भी लाइट की तरह, दे कैन बी रिफ्लेक्टेड, दे कैन बी अब्जॉर्ब। सन से रेडिएशन आ रही है, लेंस रख दो तो लेंस से आप इन रेडिएशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। और जिस पॉइंट पे आप फोकसिंग करें, अगर उसको ब्लैक कर दो तो रेडिएशन ज़्यादा वो ऑब्जॉर्व कर लेंगी, तो वहाँ आग भी लग सकती है। ऐसा लगाते हैं कई लोग। पेपर ले लिया, उसको ब्लैक कर दिया, लेंस से सन से रेडिएशन को कन्वर्ट कर लिया, और थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि पेपर जलने लगते हैं। दे हैव हीटिंग इफेक्ट। अब आपको बताया था, they travel in a straight line, they travel with the speed of light, they have wavelength higher than the visible light. Okay, they are absorbed, they cause heating effect, they exert pressure on the surface on which they fall. और इनका वेवलेंथ आपको रेंज बताया था, जो इन थर्मल रेडिएशंस है which are emitted by any hot body, okay, because of its temperature. तो उसका वेवलेंथ रेंज आपको बताया था, विजिबल रीजन से हायर है, लेकिन ये था 8 × 10⁻⁻7 मीटर टू 3 × 10⁻⁴ मीटर, ये वेवलेंथ रेंज है। ये जो रेडिएशंस है जो टेम्परेचर के कारण एमिट होती है, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, और वो जो रेडिएशन एमिट इनविजिबल है, उनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से हायर है और इस रेंज में है, 8 × 10⁻⁷ मीटर टू 3 × 10⁻⁴ मीटर रेंज में ये थर्मल रेडिएशन का ये एनर्जी है विच इज एमिटेड बाय बॉडी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। और ये जो एनर्जी emitted by the body in all the direction, and this energy is of different wavelength. Okay, because of temperature जो एनर्जी emit हो रही है उसकी wavelength इस रीजन में है, और ये विजिबल रीजन से हायर है, इन्फ्रारेड रीजन होता है। ये इनविजिबल है, नजर नहीं आती है, बट इनकी प्रॉपर्टी क्या है, दे ट्रैवल इन स्टेट वन। नंबर 1, दे हैव स्पीड ऑफ लाइट, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, दे कॉज हीटिंग इफेक्ट, they exert pressure. Okay, they can be absorbed, they can be conversed, they show phenomena like reflection, refraction, absorption, diffraction, interference. Okay, polarization. जो लाइट दिखाती है, ड्रामे करती है, वो ये रेडिएशन भी करती है। लाइट जो दिखाती है हम देख रहे हैं, विजिबल लाइट है कि क्या कर रही है, लेकिन ये जो है नज़र नहीं आ रहे। ओके, तो अगर आप इसका स्पेक्ट्रम देखें, जैसे आप मान लीजिए यहाँ ब्लैक बॉडी ले लेते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी,
उनका ये मानो टेम्परेचर है, यहाँ से वो रेडिएशन एमिट करेंगे। अब हम यहाँ इन रेडिएशन को, ये मान लीजिए मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, कनकेव मिरर है, यहाँ से रेडिएशन मान लो ये चलेगी। मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओपेक है, ट्रांसमिशन यहाँ जीरो है, रिफ्लेक्शन होनी है या अब्जॉर्प्शन होनी है, दो ही फिनोमेना होंगे तीनों में से। ओके, उसके बाद मान लीजिए ये ऐसे गई और ये यहाँ से यहाँ हमने प्रिज्म ले लिया, इसी से ग्लास प्रिज्म। अब इस रेडिएशन में जो भी वेवलेंथ है, इट हैज ए कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। ओके, तो जब ये प्रिज्म में से पास करेंगे, इनकी सेपरेटिंग होगी, डिफरेंट वेवलेंथ, यहाँ सब यहाँ इनकी सेपरेटिंग हो जाएगी, जो भी वेवलेंथ होंगी। अब ये बाहर निकलेंगी। ओके, फिर यहाँ मिरर पे इनको रिफ्लेक्ट करा देंगे। फिर हमारे पास एक डिवाइस होती है, वो है गोलोमीटर। गोलोमीटर जब ये इन रेडिएशन को रिसीव करेगा, ये रेडिएशन डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं। प्रिज्म का काम टू सेपरेट द डिफरेंट वेवलेंथ, जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स होंगे इसके रेडिएशन के। ब्लैक बॉडी है ये, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। इसमें दो एग्जांपल आपको बताए हैं, लैंप ब्लैक और प्लैटिनम ब्लैक। फिर फेरी ने अपनी ब्लैक बॉडी बनाई जो दिखने में ब्लैक नहीं थी, जो आपको बताया ना डबल बॉडी है, फेरी ब्लैक बॉडी है। ये डबल वर्ड सफियर है, ओपनिंग है, प्रोजेक्शन है, रेडिएशन एंटर करेगी, अंदर से लैंप ब्लैक से कोटिंग है, सारी रेडिएशन अंदर अरेस्ट होगी, बाहर नहीं निकल सकती। अब जो जो वेवलेंथ अंदर गई है अगर आप उनको निकालना चाहते हो तो आप इसको ये डबल वर्ड वेसल है, इसको हीट करना पड़ेगा। जैसे पुलिस पिटाई करती है जब उसको पता करना हो कि चोर ने क्या क्या चोरी की है। ओके, कई तो मोनोक्रोमेटिक चोर होते हैं जो सिर्फ एक ही चीज़ चुराते हैं, मैंने सिर्फ मोटरसाइकिल चलाना और कुछ नहीं चलाना, ठीक है ना। और कई ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ कैश चुराना और कुछ नहीं चुराना, ये मोनोक्रोमेटिक है। और कई चोर ऐसे होते हैं जो पॉलीक्रोमेटिक है, जो मिल गया वही चुराना है। घर में घुस के फ्रिज में खाने के लिए मिल गया वो भी ले जाना है, और अलमीरा में कोई कैश सोना मिल गया वो भी ले जाना है, और बाहर कहीं गाड़ी खड़ी है वो भी ले जानी है। तो ऐसा चोर पॉलीक्रोमेटिक है, उसकी कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है। तो ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, आपको बताया था परफेक्टली ब्लैक बॉडी ये है जो फेरी ने बनाई। इट विल अब्सॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। जैसे परफेक्टली भूखा बंदा वो होता है जिसको कैसा भी मिल जाए, कच्चा, बासी, पुराना, गला सड़ा, वो सब खा जाएगा, ये परफेक्टली भूखा है। जो नखरे करे ये नहीं खाना, ये ऐसा है वैसा है, इसका मतलब परफेक्टली भूखा नहीं, नखरे करता है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, अरे जो भी रेडिएशन इसके ऊपर पड़ गई, कैसी भी वेवलेंथ की हो, उसने अब्जॉर्ब कर लेगी। और जब इसकी पिटाई होगी, इसको गर्म किया जाएगा, तो वही फिर वही की वही सारी वेवलेंथ वही ओमिट करेगी जो उसने ठंडे होने पे अब्जॉर्ब की थी। ये बॉडी की नेचर है, व्हेन इट इज कोल्ड इट विल अब्जॉर्ब रेडिएशन, एंड व्हेन इट इज हीटेड इट विल ट्रांसमिट रेडिएशन, it will emit radiation, and it will emit only those wavelengths which it has absorbed on cooling. So black body है, perfectly black body is emitting radiation of all wavelengths. Okay, और वो फिर रेडिएशन को अपने यहाँ मिरर रखा, कनकेव मिरर रखा, इसको रिफ्लेक्ट किया, प्रिज्म रखा, इसको सेपरेट किया, और जो डिफरेंट वेवलेंथ है उनको यहाँ गोलोमीटर से रिसीव किया गया। ओके, तो जितनी भी ब्लैक बॉडी ने रेडिएशन एमिट की है वो डिफरेंट वेवलेंथ की है। जो अगर आप ग्राफ प्लॉट करें, लेट अस सपोज मान लो हम ये लेते हैं, इधर हम वेवलेंथ लेते हैं और इधर उसकी एमिसिव पावर लेते हैं। परफेक्टली ब्लैक बॉडी ये है ई, कैपिटल ई, एक होता है स्मॉल ई। चल आपको ये बताया था ना, आर प्लस ए प्लस टी, ये तीन चीज़ें हैं, ये बताई थी।
रिफ्लेक्टिंग पावर प्लस ट्रांसमिटिंग पावर प्लस ऑब्जर्विंग पावर, इन तीनों का टोटल 1 होता है। ओके, उसके बाद अगर बॉडी है और आप उसने जो आप उसको हीट करोगे और वो रेडिएशन एमिट करेगी, तो जैसे इसी परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो कैरी ने बनाई थी, इसको हम गर्म करते हैं। यहाँ एक फिलामेंट लेते हैं, जब इसको यहाँ से करंट पास करेंगे और करंट यहाँ से बाहर जाएगा, इसको इलेक्ट्रिकल हीटिंग करना है। और जो वेवलेंथ इसने अब्जॉर्व की थी, ठीक है, वो सारी की सारी ये एमिट करेगी, लेकिन कब? व्हेन इट इज हीटेड। तो हाउ इट इज हीटेड? इट इज हीटेड इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकल हीटिंग मीन जब आप इसमें करंट पास करेंगे तो करंट का हीटिंग इफेक्ट है, करंट की 4 शरारतें, हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैकेनिकल इफेक्ट है और केमिकल इफेक्ट है। ओके, गीज़र है, हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, करंट पास करते हैं गर्म हो जाती है, ये इलेक्ट्रिकल हीटिंग है। ओके, कई लोग भी कोयलों से प्रेस गर्म करके कपड़े प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग नहीं है। लेकिन आजकल इलेक्ट्रिकल हीटिंग वाली प्रेस आ रही है, लाइट वेट। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल हीटिंग क्या मतलब, यहाँ जो डबल वाल्ड है उसमें हमने एक फिलामेंट पास किया, उसमें करंट पास किया और करंट ने अपना हीटिंग इफेक्ट दिखाया। हीटिंग इफेक्ट ये होता है, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन यू पास करंट आई थ्रू ए डिस्टेंस आर फॉर टी टाइम। करंट आई को आर डिस्टेंस में टी टाइम के लिए पास करो, इतनी हीट पैदा होती है। और अगर करंट आप एम्पियर में लेते हैं, रेजिस्टेंस ओम्स में लेते हैं, टाइम सेकंड में लेते हैं, तो ये हीट जो है जूल्स में आती है। और अगर आप इसको जे से डिवाइड कर देते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट से, तो ये एनर्जी कैलोरी में आ जाती है। तो जब आप इसको गर्म करेंगे, गर्म करने और इसकी पिटाई कर रहे हैं कि निकाल जो तुमने वेवलेंथ खाई थी जब तो ठंडी थी, निकाल जो तो तुमने, क्योंकि जब चोरी करता है चोर, पुलिस तो नहीं पकड़ती, उसको पता नहीं लगता, तो चोरी करता चला जाता है। लेकिन एक बार पकड़ा गया तो फिर पुलिस कहती क्या क्या तुमने चोरी किया बता, नहीं बताता नॉर्मली, फिर उसकी पिटाई करनी पड़ती है। तो बॉडी से अगर आप जो वेवलेंथ वो एमिट कराना चाहते हैं, जो उसने ऑब्जर्व कर रखी है जब वो ठंडी थी, तो फिर इसकी जो 3rd डिग्री ट्रीटमेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करो। ठीक है, गर्म करते जाओ और ये वेवलेंथ निकालती जाए। ये मैंने ऑब्जर्व की थी, ये ऑब्जर्व की थी, और भी है, निकाल फटाफट। ठीक है ना। तो इसको जब इलेक्ट्रिकल हीटिंग करेंगे तो इट विल एमिट रेडिएशंस। और कई लोग क्या करते हैं, ये जो ओपनिंग है यहाँ से एनर्जी एमिट होएगी बाहर, और कई लोग क्या करते हैं, यहाँ एक आदमी का चेहरा बना लेते हैं, ठीक है ना। और वहाँ से जब क्योंकि इलेक्ट्रिकल हीटिंग हो रही है और वेवलेंथ निकल रही है, तो ऐसे मुँह बना लेंगे, ऐसे जो आपके गोले निकल रहे, ठीक है ना। और फिर ऐसे यार ये महात्मा बड़ा चेहरा है यार, तो मुँह में से आग के गोले निकालता है। तो उसको ये नहीं पता कि फेरी ब्लैक बॉडी है जिसकी हीटिंग हो रही है और वो रेडिएशन निकाल रही है, उसकी पिटाई हो रही है। इस ओपनिंग से जिस ओपनिंग से एंटर करी थी ना रेडिएशन, यहीं से बाहर आएंगी सारी। तो हमने परफेक्टली ब्लैक बॉडी ले ली, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की आपको डेफिनेशन बता दी, फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी आपको बना के दिखा दी, और फिर परफेक्टली ब्लैक बॉडी ने जो एनर्जी एमिट किया डिफरेंट वेवलेंथ की है, मिरर से इनको हमने रिफ्लेक्ट किया, प्रिज्म से इनको इनके जो कॉन्स्टेंट वेवलेंथ है वो सेपरेट कर दी। डिस्पर्शन होती है ना, सेपरेटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कांस्टेंट कलर, सिमिलरली सेपरेटिंग ऑफ रेडिएशन इनटू इट्स कॉन्सिक्वेंट वेवलेंथ्स। और वेवलेंथ रेंज आपको पता ही क्या थी। ओके, फिर हम इनको यहाँ से ये डिफरेंट वेवलेंथ सेपरेट हो जाएंगे। फिर हम इस मिरर से इसको फोकस करेंगे, गोलोमीटर एक डिवाइस है जो इनको रिसीव करेगी और फिर ये बताएगी कि यार ये जो वेवलेंथ है, सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ एमिट हुई है ब्लैक बॉडी ने की है जी, वो इतनी वेवलेंथ वाली है। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारा ग्राफ ऐसे आएगा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये कोई टेम्परेचर है इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, इस पे एनर्जी एमिशन हुआ है। ओके, तो इसमें अगर आप ग्राफ प्लॉट करते कौन कौन सी वेवलेंथ की कितनी, ये ई क्या है, एक छोटा ई है, एक बड़ा ई लगता है। दिस इज फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये है क्या, दिस इज मोनोक्रोमेटिक
एमिटेंस ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये भी मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस है, मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस मीन जैसे आप फंक्शन में जाते हैं, वैरायटी खाते हैं, खाने के बाद आपसे पूछे यार वो आइटम तुमने कितनी खाई, कोई पर्टिकुलर आइटम ले लेते हैं। ओके, पर्टिकुलर आइटम में मान लीजिए आप आइसक्रीम ले लेते हैं, कोई स्वीट डिश ले लेते हैं, या कोई स्पेशल सब्जी या दाल या कोई ऐसी वेजिटेबल ले लेते हैं। ओके, ये तूने कितनी खाई, तो सारी चीज़ें बराबर बराबर नहीं खाता आदमी। ओके, और कई चीज़ टच भी नहीं करता। तो इसलिए जो ब्लैक बॉडी है ये अमिट कर रही है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, क्योंकि अब्जॉर्ब भी करती है सारी वेवलेंथ जो भी पड़ जाएगी, अमिट भी कर रही है। तो जब ब्लैक बॉडी ने एमिशन करी तो जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे कोई टेस्ट हुआ, एक ही क्लास के बच्चों का एक ही टीचर ने पढ़ाया था, सेम टाइम पे टेस्ट हुआ, सेम सब्जेक्ट है, तो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होते। बहुत कम मार्क्स लेने वाले, 0 नंबर लेने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं, और 100% लेने वाले भी बहुत कम होते हैं। ठीक है ना। तो जो यहाँ भी जो एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ वो सेम नहीं है। ओके, अब यहाँ से देखो, एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, ये शॉर्ट वेवलेंथ है, एनर्जी एमिशन इज वेरी स्मॉल, ये लैम्डा की वैल्यू स्मॉल है। ये एक वेवलेंथ है जिसको मैंने स्पेशल नाम दिया लैम्डा एम, इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा मिट हुआ, ई लैम्डा मैक्सिमम। एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ इज मैक्सिमम, and if you go for higher wavelength, फिर एनर्जी एमिशन कम है। I have taken a perfectly black body at a temperature T. It is emitting radiation of different wavelength. और बोलोमीटर से हम पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी वेवलेंथ कम एमिट हुई, कौन सी ज़्यादा एमिट हुई। ओके, एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट है। Energy corresponding to small wavelength is small, energy corresponding to large wavelength, ये large wavelength higher wavelength है, ये भी तो इसका मिशन भी तो कम ही है। ओके, ये जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा ये एनर्जी एमिट हुई है इस टेम्परेचर पे। ओके, ये है क्या, ई लैम्डा कैपिटल ई। हम सिर्फ जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उसकी जो एमिटेंस है, एमिसिव पावर है, कि हाउ मच एनर्जी इज एमिटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर सेकंड पर एरिया। एनर्जी एमिटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर सेकंड पर एरिया, उसको हम ई बोलते हैं। पर लैम्डा साथ में लगा दिया तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए स्पेशल वेवलेंथ। बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ओके, उसने जो एनर्जी एमिट किया पर सेकंड पर एरिया, उसको उसकी एमिसिव पावर एमिटेंस बोलते हैं, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर एरिया। एमिटेंस मीन्स थर्मल एनर्जी, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया बाय ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी of wavelength lambda over a unit wavelength range starting from lambda minus half to lambda plus half। मतलब लैम्डा के अराउंड रहना है, लैम्डा में थोड़ा सा प्लस या लैम्डा में माइनस हाफ, इसके अराउंड ही रहना। जैसे हमने कहना है आपने बर्फी कितनी खाई, अब बर्फी में वैरायटी है तो मोनोक्रोमेटिक बात करनी है, एक टाइप की बर्फी की, बोला सिर्फ खोए की बर्फी, क्योंकि बेसन की बर्फी भी होती है, कोकोनट की बर्फी भी होती है, बादाम की बर्फी भी होती है, काजू की बर्फी भी बनने लगी है। ठीक है ना। तो हम पर्टिकुलर बर्फी की बात करें, खोए की बर्फी।
बेसन वाली भूल जाओ, कोकोनट वाली भूल जाओ। ओके, तो हम रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर। अच्छा हाँ, फिर उसमें थोड़ी सी छूट दे देते हैं भाई, खोए की होनी चाहिए। हाँ, उसमें कोई कलर मिला दिया या थोड़ा पिस्ता मिला दिया, वो अलाउड है थोड़ा बहुत। तो हाउ मच एनर्जी इज emitted बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी अराउंड दिस वेवलेंथ, इस वेवलेंथ की एनर्जी कितनी एमिट किया पर सेकंड करंट एरिया बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और हमने थोड़ी सी छूट क्या दे दी, यूनिट वेवलेंथ रेंज अराउंड लैम्डा, ओके, ओवर यूनिट वेवलेंथ रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम लैम्डा माइनस हाफ टू लैम्डा प्लस हाफ। मैक्सिमम इतनी, मिनिमम इतनी, और रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो दिस माइनस दिस 1 आएगा। तो ये कैपिटल ई लैम्डा जो है ये मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस है। कैपिटल ई हमने हमारे परफेक्टली ब्लैक बॉडी, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो है जिसकी ऑब्जर्विंग पावर 100% है। उसमें लैम्प ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक और फेरी ब्लैक बॉडी, 3 बॉडीज हमने ली। वो भी परफेक्टली मान लिया, एक्चुअली उनकी जो ऑब्जर्विंग पावर है 99% है, लेकिन उसको ऑलमोस्ट हमने परफेक्टली ब्लैक मान लिया। ये एनी बॉडी है, जिस स्मॉल ई से डिनोट किया, ये भी मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस है। And this is the energy emitted by anybody per second per area around this wavelength। इसी के आसपास रहना है, इससे आधा कम या आधा ज़्यादा। ठीक है, हमने सिर्फ बर्फी कितनी खाई, और उसमें भी सिर्फ हमने खोए की बर्फी की बात करनी है, उसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया, मिला दिया, ग्रीन कर दिया, येलो कर दिया, इतना अलाउड है। क्योंकि फिर वो कलर अगर नहीं होगा तो फिर प्योर खोया होगा, कलर मिला दिया, कोई फ्लेवर मिला दिया, तो उसको प्योर खोया नहीं ना कह सकते। तो थोड़ी सी छूट दे दी, थोड़ी खोए की चाहिए, ठीक है, थोड़ा फ्लेवर मिला दो, ओके, कलर थोड़ा चेंज कर दो, ये है। तो ये क्या ई जो हमने रिस्पेक्ट दिया परफेक्टली ब्लैक बॉडी को, और स्मॉल ई फॉर एनी बॉडी है, ओके। और इस वेवलेंथ की बात करें, परफेक्टली ब्लैक बॉडी ने इस वेवलेंथ वाली कितनी एनर्जी एमिट किया पर सेकंड करंट एरिया, इसको मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं, इसको मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस फॉर एनी बॉडी बोलते हैं। समझ में आया? कल आपको रिफ्लेक्टिंग पावर, ऑब्जर्विंग पावर, ट्रांसमिटिंग पावर बताई थी, और आज ये एमिटेंस है। एमिटेंस मीन एनर्जी एमिशन हो रहा है बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी और बाय एनी बॉडी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए हमने कैपिटल ई वर्ड यूज किए, लेटर ले लिया है, और एनी बॉडी के लिए स्मॉल ई ले लिया। जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट टू परफेक्टली ब्लैक बॉडी हमने थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली जो कल आपको ये बताया था, अब हम मोनोक्रोमेटिक ऑब्जर्वेंस की बात कर लेते हैं। ये बताया ना, आज भी फिर रिवाइज किया है कि टोटल एनर्जी कितनी ऑब्जर्व हुई और डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी कितनी इंसिडेंट हुई इन ए गिवन टाइम। यही था ना ऑब्जर्विंग पावर, यस सर। Q2 बाय Q। तो इसमें वी डोंट टॉक अबाउट विच वेवलेंथ यू आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल वेवलेंथ। जितनी भी वेवलेंथ बॉडी के ऊपर पड़ी है, रेडिएशन पड़ी है, उसमें टोटल कितनी ऑब्जर्व हुई और डिवाइडेड बाय टोटल कितनी इंसिडेंट हुई, तो उसको तो हम ए बोलते हैं। अब हमने ए लैम्डा की बात की, दैट मीन्स आप सिर्फ इस वेवलेंथ की बात करेंगे कि ये वेवलेंथ वाली एनर्जी कितनी ऑब्जर्व हुई और इसी वेवलेंथ वाली कितनी टोटल एनर्जी इंसिडेंट हुई। तो इसको हम क्या देते हैं, मोनोक्रोमेटिक। एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं, ओके। कौन सी आइटम ले रहे हो, ऑब्जर्विंग पावर। कल डिफाइन किया था, इट इज ए रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द बॉडी इन ए गिवन टाइम डिवाइडेड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इंसिडेंट। इस रेशियो को ऑब्जर्विंग पावर बोलते थे। अब हम मोनोक्रोमेटिक ऑब्जर्वेंस ले रहे हैं। ये ऑब्जर्वेंस है जनरल, इसमें स्पेसिफिक नहीं है आपको, ऑल वेवलेंथ जो भी इंसिडेंट हुई है, ऑब्जर्व हुई है, ओके। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ इस वेवलेंथ की बात करनी है, बाकी वेवलेंथ की बात नहीं करनी। ए लैम्डा इज मोनोक्रोमेटिक ऑब्जर्वेंस, मीन्स अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ दिस वेवलेंथ absorbed by the given surface in a given time divided by total amount of thermal energy of this wavelength, या around this wavelength over a unit wavelength range from lambda minus half to lambda plus half, इतनी छूट दे सकते हो, ओके।
सर एक बार सर बोलोमीटर की डेफिनेशन बता दो। बोलोमीटर एक डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है थर्मल रेडिएशन फ्रॉम ए डिस्टेंस। टेम्परेचर मापना हो फ्रॉम ए डिस्टेंस, रेडिएशन आ रही है। एक तो थर्मामीटर है ना, बॉडी को टच किया और बॉडी का टेम्परेचर आ गया। जो बोलोमीटर है दूर आग लगी है, और वहाँ से ना साइंटिस्ट देख लेते हैं कितनी दूर आग लगी है, तो ये बोलोमीटर रख देते हैं, इसके ऊपर वो जो आग लगी है वहाँ से रेडिएशन आ रही है, थर्मल रेडिएशन, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो उसको वहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है। फिर आपको एक पॉइंट बताया था कि जो इंटेंसिटी है डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है वहाँ से आप जितनी दूर चलते चले जाएंगे उतना जो इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, आई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर डबल डिस्टेंस पे चले जाएंगे इंटेंसिटी 1/4 रह जाएगी। इसको इनवर्स के अलावा बोलते हैं, कल बताया था। यस इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द सोर्स। कहाँ से रेडिएशन आई, किसने ऑब्जर्व करी। ओके, अब थर्मामीटर तो टच करके टेम्परेचर बताएगा, लेकिन बोलोमीटर टच नहीं करेगा। जहाँ आग लगी वहाँ टच करने की जरूरत नहीं है, वहाँ से रेडिएशन आएंगी, ठीक है। और वो कितनी दूर आई है, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर आई है। जो फार्मूले से पता लग जाएगा कि कितनी डिस्टेंस से आई है, इंटेंसिटी कितनी वीक हो चुकी है। थर्मल कैमरा जैसा है, थर्मल कैमरा जैसा। हाँ वैसे ही है। इट इज ए डिवाइस टू डिटेक्ट थर्मल रेडिएशन। ओके, यस सर। तो जो थर्मल रेडिएशन है ये कौन सी थर्मल रेडिएशन, ये जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी यहाँ रखी थी हमने, यहाँ परफेक्टली ब्लैक बॉडी रखी थी, और परफेक्टली ब्लैक बॉडी emits radiation of all wavelength and it absorbs radiation of all wavelength at every temperature। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का हम ये स्टडी करना चाहते हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो उसने वेवलेंथ एमिट की है, क्या सारी वेवलेंथ बराबर एनर्जी की एमिट की है? नहीं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म। ये ग्राफ ये बता रहा है कि कौन सी वेवलेंथ की कितनी एनर्जी परफेक्टली ब्लैक बॉडी ने एमिट की है। तो डिफरेंट वेवलेंथ एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंट, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म। एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू वेरी स्मॉल वेवलेंथ is very small, energy corresponding to large wavelength very small। 100 नंबर लेने वाला एक बच्चा, 0 नंबर वाला एक बच्चा, ज़्यादातर बच्चे इस रेंज में आते हैं जो 40-60 के बीच में मार्क्स लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो लेकिन जब परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया इस अरेंजमेंट से, तो डिफरेंट वेवलेंथ की जो इंटेंसिटी थी बैरोमीटर ने जो रिकॉर्ड करी वो डिफरेंट थी। तो पता लगा कि जो स्मॉल वेवलेंथ है उनकी एनर्जी मिशन भी ब्लैक बॉडी ने कम की है, और लार्ज वेवलेंथ भी कम एनर्जी वाली एमिट हुई है। लेकिन एक वेवलेंथ ऐसी थी जिसका मैक्सिमम एमिशन हुआ, तो लैम्डा एम को एक नाम दिया गया, लैम्डा एम को वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन। लैम्डा एम इज वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन। That means energy corresponding to this wavelength is maximum। ये wavelength सबसे ज़्यादा emit हुई है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा at this temperature। ओके, क्योंकि जो एनर्जी मिशन होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप कितना कुछ खाते हैं वो भूख पे डिपेंड करता है। आपके जो स्टोमक का स्टेटस है, तो आपको बहुत भूख लगी है या नहीं लगी। अब भूख बहुत लगी है तो पसंद की चीज़ मिल गई तो ज़्यादा खाएंगे। अब ब्लैक बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एनर्जी मिशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा एनर्जी मिशन कम होगा। तो भी अभी बताएंगे, एक लॉ है स्टोक्स लॉ। पर अभी हम ये बता रहे हैं कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म, नंबर 1। नंबर 2, एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू स्मॉल वेवलेंथ इज स्मॉल, एनर्जी मिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू हायर वेवलेंथ इज आल्सो स्मॉल, एंड देयर इज वन वेवलेंथ called lambda m, energy corresponding to this wavelength is maximum, and this is called wavelength of maximum emission at this temperature। ओके, फिर क्या देखा गया इसमें क्या रिलेशन है कि लैम्डा एम, ये जो प्रोडक्ट है लैम्डा एम इंटू टी, ये कांस्टेंट है।
lambda m into t. This product is constant for perfectly black body. जी lambda m into t is constant for a perfectly black body. तो हमने क्या देखा कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल रेडिएशन emitted by perfectly black body, पहला ऑब्जर्वेशन देखा इस ग्राफ से कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म, सारी वेवलेंथ बराबर बराबर कमिट नहीं हुई है. ओके, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी मिशन बहुत कम है, लार्जर वेवलेंथ की भी एनर्जी मिशन कम है. एक वेवलेंथ है लैम्डा एम जिसका एनर्जी मिशन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, इसने रिकॉर्ड किया बोलोमीटर में. ओके, इस टेम्परेचर पे ये वेवलेंथ सबसे ज़्यादा मीट हुई और इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है. ये एक लॉ बन गया, इसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. Wien's displacement law states that the product of the wavelength of maximum emission and the temperature of the perfectly black body at which this wavelength is emitted maximum, the product is constant. The product of wavelength of maximum emission and the temperature, this is constant. This constant is equal to B, and this statement is called Wien's displacement law. Black body emits radiation of all wavelength, but different wavelength they are not equally emitted. Energy corresponding to certain wavelength is small, energy corresponding to a particular wavelength is maximum. Okay, when we plotted a graph between wavelength and the corresponding energy emission, कौन सी wavelength की कितनी एनर्जी emit हुई पर सेकंड फैरेड एरिया. ओके, तो ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ ने हमें क्या क्या बातें बताई कि एनर्जी corresponding to short wavelength is small, energy corresponding to larger wavelength is small. There is one particular wavelength called wavelength of maximum emission for which energy emission is maximum. और क्या बताया, the product of lambda m and t, इस टेम्परेचर पे ये wavelength सबसे ज़्यादा. रोज आप कोई भी पर्टिकुलर आइटम बराबर बराबर नहीं खाते, कई बार भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा खाई जाती है. जब भूख नहीं होती तो कम खाते हैं, फास्ट रखा तो बिल्कुल नहीं खाते. तो आपकी पसंद की चीज़ है, मान लो समोसा ही है, और बड़ी भूख लगी थी, चले गए दुकान पे 10 समोसे खा लिए. अगले दिन वही बंदा उसी दुकान पे गया, वही समोसे बनाने वाला था, तो कहते लाओ भाई समोसे, कल एक ही देना. आप क्यों भाई, कल तो 10 खा लिए थे, आज क्यों? कल बहुत भूख लगी थी, आज भूख नहीं है. तीसरे दिन वही बंदा उसी दुकान पे गया, समोसे बन रहे थे, वही हलवाई ने बनाए थे, और फिर तो समोसे कितने दूर ना, आज नहीं कुछ नहीं खाया. तो क्यों भाई, आज फास्ट है. वही बंदा, वही समोसे, वही टेस्ट, सब कुछ वही, लेकिन डिफरेंट डे में डिपेंड्स अपॉन उसकी स्टेट क्या है. तो जो बॉडी है वो थर्मल रेडिएशन एमिट कर रही है, पर वो टेम्परेचर डिसाइड करता है. ओके, तो पहला हमें लॉ पता लगा, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. आप देखते हैं कपड़े प्रेस करता जो भी, तो जब कोयला डालता है ना प्रेस में, लाल होता है. कोयला भी होता ब्लैक कलर का, लेकिन कलर चेंज करके रेड हो गया. और जैसे टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है, उसका कलर फेड होता जाता है. और जब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है तो वाइट हो जाता है, ग्रे वाइट बन जाता है. कलर क्यों चेंज किया? कलर मीन्स वेवलेंथ चेंज कर दी टेम्परेचर के साथ. टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है. हम ये कह सकते हैं लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. ओके, तो जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है. इसका कांस्टेंट को हमने बी लिख दिया,
बी को नाम दे दिया वीन्स कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है 28.84 मीटर केल्विन। वीन्स कांस्टेंट बी which is a product of wavelength of maximum emission and the temperature at which this wavelength is emitted maximum. And the product is B, which is constant. Value is 28.84 meter Kelvin. So the wavelength will be in meter and temperature will be in Kelvin. That's a system. तो यूनिट आ गया मीटर केल्विन। ओके, तो हमने ब्लैक बॉडी का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि यूनिफॉर्म नहीं है। उसमें एक लॉ ये निकला, ठीक है, एक लॉ ये निकला कि इसमें एरिया अंडर ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ इज, ये जो ग्राफ ऐसे आया है इसके अंदर जितना भी एरिया आएगा, एरिया अंडर से ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ इज इक्वल टू टोटल energy emitted by perfectly black body per second per unit area. ब्लैक बॉडी ने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफरेंट वेवलेंथ एमिट की हैं, लेकिन पार्शलिटी दिखाई है। कोई वेवलेंथ की एनर्जी बहुत कम एमिट हुई, कोई वेवलेंथ बहुत ज़्यादा एमिट हुई, और एक तो ऐसी थी जिसकी एनर्जी का मैक्सिमम एमिट हुई, तो उसने वेवलेंथ से ज़्यादा एमिट की। ओके, फिर हमने एक कंक्लूजन ये निकला, दूसरा ये निकला, और ये जो निकला कि टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर एरिया बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी जी ये दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। और ये जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है दिस इज इक्वल टू सिग्मा T4। इसको न्यूमेरिकली E इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, न्यूमेरिकली ये क्या है, एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर एरिया बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इसको एक नाम दे दिया स्टोक्स लॉ। E proportional to T4 या E is equal to sigma T4। क्या मतलब, टोटल एनर्जी emitted per second per area by perfectly black body at a particular temperature is directly proportional to fourth power of its absolute temperature T4, E proportional to T raised to the power 4, E proportional to T4, okay, and to remove this proportionality into this equality, यहाँ एक कांस्टेंट लगाएंगे सिग्मा, और फिर ये जो रिलेशन बन गया मैथमेटिकल रिलेशन, इसका नाम स्टोक्स लॉ है। और ये जो एरिया अंडर ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ था, जो टोटल एनर्जी इमिटेड पर सेकंड पर एरिया बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी था, जो स्टोक्स ने बोला कि वो इसके बराबर होता है। तो एरिया प्रोपोर्शनल टू T4 या एरिया न्यूमेरिकली इक्वल टू सिग्मा T4। तो E इज इक्वल टू सिग्मा T4, ये स्टीफन का लॉ है। ओके, जो सिग्मा है, सिग्मा इज कांस्टेंट, दैट इज स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स लॉ है, हाँ जी, ये स्टीफन का लॉ है। एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर एरिया बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, जो E है कैपिटल E परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए है, और परफेक्टली ब्लैक बॉडी ने इस टेम्परेचर पे जो टोटल एनर्जी इमिट किया पर सेकेंड पर एरिया, समझी, वो टेम्परेचर डिसाइड करता है। E is equal to sigma T4। तो ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ है, इसे दो चीजें पता लगी, तो वीट डिस्प्लेसमेंट लॉ
एक स्टीफन लॉ क्या है कि जो ग्राफ है उसके अंदर जितना भी एरिया है दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टोटल एनर्जी emitted per second current area by a perfectly black body. Or it has been observed that energy emitted per second current area by a perfectly black body at a given temperature T is proportional to fourth power of absolute temperature. अब ये कांस्टेंट लगा दिया, इसकी जो वैल्यू है 5.68 into 10 raised to the power 8. हाँ जी, अब इसका यूनिट यहाँ से डिसाइड करो। सिग्मा विल बी, यूनिट देखो, सिग्मा विल बी E by T4. E क्या है? एनर्जी emitted per second current एरिया। तो एनर्जी आप इसमें लेंगे जूल में, एनर्जी जूल में पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और नीचे केल्विन फोर, ठीक है ना? तो ये केल्विन -4 आ जाएगा और जूल पर सेकंड को वाट भी कहते हैं, तो फिर ये वाट में आ जाएगा। जूल पर सेकंड वाट हो गया, नीचे मीटर -2 केल्विन -4। Once you have a relation and you know the definitions of the physical quantity entering into this relation, then you can find out the unit of any physical quantity. Okay, इसको आप जानते हैं एनर्जी emitted per second current area by perfectly black body. स्टीफन ने कहा it is proportional to fourth power of absolute temperature. Proportional to fourth power. Constant लगा दिया, constant को पहचान रहे हैं, स्टीफन constant E by T4 है। E एनर्जी emitted है, एनर्जी emitted per second current area, और नीचे टेम्परेचर की पावर 4 है। गट में पॉइंट। फिर हमने कंबाइन कर दिया, जूल पर सेकंड को वाट लिख दिया, फिर पर मीटर स्क्वायर है और नीचे केल्विन है, इसको ऊपर ले दें, केल्विन -4 है, मीटर -2 है, ऊपर ले जाओ तो ये स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। क्लियर? तो जो कल आपको बताया वो रिफ्लेक्टिंग पावर, अब्जॉर्बिंग पावर और ट्रांसमिटिंग पावर। फिर परफेक्टली ब्लैक बॉडी बताया कि A 1 होगा, बाकी RB 0 TB 0, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। फिर अब आज हमने मोनोक्रोमेटिक अब्जॉर्प्शंस की बात करी, सारी चीज़ों की नहीं, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बारे में, कितनी अब्जॉर्ब की, कितनी इंसिडेंट हुई थी, वही वेवलेंथ। ओके, आप इसको जानते हैं कि ये क्या है, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब्ड ओवर टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इंसिडेंट। इसमें वी हैव नॉट टेकन एनी स्पेसिफिक वेवलेंथ, जो भी वेवलेंथ इंसिडेंट हुई, ठीक है, और उसमें जो भी सारी वेवलेंथ जो भी उसने अब्सॉर्ब की वो हुई है। अब ये मोनोक्रोमेटिक है, इस वेवलेंथ की बात करनी है, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड ऑफ दिस वेवलेंथ लैम्डा। Okay, and total energy incident of this wavelength in a given time, दोनों करना, ठीक है। फिर हम ये एमिडेंस की बात करें, एनर्जी emitted per second current area by perfectly black body। फिर हमने ये छोटा ही ले लिया, ये एनी बॉडी है, ये perfectly black body है, ये perfectly black body का मोनोक्रोमेटिक अब्जॉर्प्शन है, मोनोक्रोमेटिक एमिडेंस है, परफेक्टली ब्लैक का, ये एनीबॉडी का, ये भी एनीबॉडी का। इफ एनीबॉडी इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो फिर ये लैम्डा भी 1 हो जाएगा। फॉर एवरी परफेक्टली ब्लैक बॉडी अब्जॉर्बिंग पावर, अब्जॉर्प्शन चाहे मोनोक्रोमेटिक हो चाहे ओवरऑल हो, 100% है, 1 ही है। कट में पॉइंट। एक और लॉ निकला है, इन से एक और लॉ निकला है, वो क्या है? वो है किरचॉफ लॉ, नोट कर लो, किरचॉफ लॉ। ये किरचॉफ लॉ इलेक्ट्रिकल सर्किट में आता है, 12th में पढ़ेंगे आप। किरचॉफ लॉ थर्मल रेडिएशन का क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ E लैम्डा टू A लैम्डा
the ratio of monochromatic emittance to monochromatic absorptance. This is a constant and this is equal to monochromatic emittance of a perfectly black body. स्मॉल ई एनी बॉडी के लिए है और कैपिटल ई परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए है. ओके, इन सब ने जो लॉ दिया हीट थर्मल रेडिएशंस का, द रेशियो ऑफ मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस, एमिटेंस मीन्स एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड करंट एरिया बाय एनीबॉडी और बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी. ये बाय एनीबॉडी है, ये बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी है. ओके, ये ऑब्जर्विंग पावर है. एनीबॉडी है तो ए लैम्डा 1 नहीं होगा. Do not absorb radiation of all wavelengths. Even single wavelength भी पूरी तरह absorb नहीं करेंगे. ठीक है ना? एनीबॉडी है, समोसे रख दिए 10 तो सारे नहीं खाएंगे. परफेक्टली भूखा नहीं है. अगर परफेक्टली भूखा है तो 10 के 10 खा लेंगे. अगर नॉर्मल बंदा है, परफेक्टली भूखा नहीं है, भाई एक खाना है तो खा लेते हैं, चलो ज़्यादा 10 में तो फिर 20% उसकी ऑब्जर्विंग हो जाएगी. 10 में से 2 खाए उसने, क्योंकि परफेक्टली भूखा होता तो 10 के 10 खाता है 100. तो फिर ये ए लैम्डा एनीबॉडी है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी आपको देखना है. अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए कितना से नाम लगाते हैं तो फिर आप इसको 1 लिख देंगे. जब इसको 1 लिख देंगे मीन्स बॉडी आपने परफेक्टली ब्लैक बॉडी मान ली है, तो उसमें छोटा ई और बड़ा ई बराबर हो जाएगा. एनीबॉडी विल बिकम परफेक्टली ब्लैक. फिर ये छोटा थोड़ी लिखेंगे, फिर बड़ा लिखेंगे, फिर ये लैम्डा 1 ले लेंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे. समझ में आया? ये किल्चर्स लॉ है कि रेशियो ऑफ मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस टू मोनोक्रोमेटिक अब्जॉर्प्टेंस, ओके, इज कांस्टेंट फॉर ए बॉडी एंड दिस इज इक्वल टू मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी. And if you apply this for a perfectly black body, तो फिर इसके नीचे डिनोमिनेटर को 1 लिख दो, तो ये एनीबॉडी अपने आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी बन गई. छोटा ही लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल ई लैम्डा. तो आपको अब क्या पता लगा? स्टोक्स लॉ पता लगा, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ पता लगा और किर्चॉफ लॉ पता लगा. रिवर्स थ्योरी कल बताई थी, अब्जॉर्प्शंस, एमिटेंस और ये ट्रांसमिटेंस, रिफ्लेक्टेंस कल बताया था. आज मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस, मोनोक्रोमेटिक अब्जॉर्प्टेंस की बात हुई है, उनके रिलेशन की बात हुई है. कोई डाउट है तो पूछो. डन.